আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব পিতৃদেবের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী বড়দাদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। সমস্ত ঠাকুর পূজনীয় বাবাই দাদার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম এবং সমস্ত ঠাকুর পরিবারের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আজ মীনা চ্যাটার্জি মা এবং অভিজিৎ ভাইয়ের বিবাহ বার্ষিকী। এই আনন্দের মুহূর্তে তারা ঠাকুরের সৎসঙ্গ আয়োজন করেছেন। আমরা সকলেই জানি যে দীক্ষার মাধ্যমে ঠাকুরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে আমাদের জীবন হয়ে ওঠে ঠাকুর কেন্দ্রিক। ঠাকুরই হয়ে ওঠেন আমাদের জীবনের সঞ্চালক, নিয়ামক এবং পরিচালক। আমাদের জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি, আনন্দ যা কিছুই আমাদের জীবনে আসুক না কেন, তার সমস্ত কিছুতেই আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েই থাকতে চাই। আমাদের জীবনের যত আনন্দ, ঠাকুর বলেছিলেন যে আমাকে তোরা ছবির ঠাকুর মনে করে দূরে সরিয়ে রাখিস না, আমাকে তোরা তোদের পরিবারের একজন বলে মনে করবি। তো যদি আমরা ঠাকুরকে আমাদের পরিবারের একজন বলে মনে করতে চাই, তাহলে তিনি আমাদের পরিবারের প্রধান, আমাদের পিতার পিতা, পরম পিতা। তাই জীবনের যে কোনো আনন্দ, তা সে বিবাহ বার্ষিকী হোক বা পরিবারের কোনো সদস্যের জন্মদিন হোক বা জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের সন্তান সন্ততির কৃতকার্যতার আনন্দ ঘন মুহূর্তই হোক, সবকিছুই আমরা আমাদের সেই পরম পিতা, সেই আনন্দ ঘন পুরুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই এবং তার স্মরণে থেকে তার সাথে সংযুক্ত হয়ে সেই আনন্দকে আমরা উপভোগ করতে চাই। এই উদ্দেশ্যেই আজ মীনা মা এবং অভিজিৎ ভাই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। আমি ঠাকুরের রাতুল চরণে তার সমস্ত পরিবারের সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তি কামনা করছি। এবং এই প্রসঙ্গে আমি এই বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষেই আমার জীবনের শ্রী শ্রী আচার্যদেবের কাছ থেকে পাওয়া যে পরম আশীর্বাদ, সেই আশীর্বাদের আনন্দটুকু আজ এই আনন্দের মুহূর্তে আমি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। তাই বলি, গত 2020 সালের 7ই মার্চ ছিল আমার বিবাহ বার্ষিকী, আমাদের বিবাহ বার্ষিকী। আমরা গেছিলাম ঠাকুর বাড়িতে। সেখানে আচার্য প্রণাম করার সময় সকলেই তাদের নিজেদের কিছু না কিছু পারিবারিক সমস্যা হোক বা যা কোনো কিছু হোক নিবেদন করছিলেন আচার্যদেবকে। আমার স্ত্রী বললেন যে দাদাকে একটু নিবেদন করো না, আমাদের আজকে বিবাহ বার্ষিকীর কথা, আশীর্বাদ চেয়ে নেবো। আমি বললাম দাদাকে মনে মনে নিবেদন করো। কিন্তু তার পীড়াপিড়িতে আমি গিয়ে, যে দাদাটি ওখানে উপস্থিত ছিলেন, যিনি আমাদের কাছ থেকে সবকিছু শুনে নিয়ে আচার্যদেবকে নিবেদন করেন, তাকে বললাম যে দাদা আজকে আমাদের বিবাহ বার্ষিকী, তো এই উপলক্ষে একটু আচার্যদেবকে নিবেদন করে দিন, আমরা যারা আশীর্বাদ পেয়ে যাই। উনিও সেই এক কথাই বললেন, আপনারা মনে মনে নিবেদন করুন, দাদা আশীর্বাদ পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি সেই নাছোড়বান্দার মতো, ছোট ছেলের মতো তাকে আবদার করতে লাগলাম, দাদা প্লিজ দাদা আপনি একটু বলে দিন না, দাদা একটু বলে দিন না। আচার্যদেব নিজের আসনে বসে আমাদের দুজনের ওই কথোপকথন থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে কোনো আনন্দ সংবাদ নিয়েই হয়তো আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। কারণ যখন আমরা আমাদের জীবনের কোনো দুঃখ, কোনো যন্ত্রণা, কোনো কষ্টের কথা আচার্যদেবকে নিবেদন করতে চাই, তখন আমাদের যে এক্সপ্রেশন হয় তা তো ছিল না আমার। এবং দাদাও হাসছিলেন, আমিও হাসছিলাম। কাজে আচার্যদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে কোনো একটা আনন্দ ব্যাপার, ময় মুহূর্ত নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।
তিনি নিজের আসনে বসে বসেই হাসছিলেন। তার সেই অপরূপ হাসি আমি দেখছিলাম আর ওই দাদাকে নিবেদন করছিলাম। দাদাটি গিয়ে দাদা আচার্যদেবকে নিবেদন করলেন যে আজকে ওনাদের বিবাহবার্ষিকী, তাই আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। দাদার হাসি এত দরাজ হয়ে উঠলো, দাদা এত সুন্দরভাবে হাসলেন যে আমি বিগত 10-12 বছরে ওনাকে হাসতে দেখিনি। হাসতে হাসতে দাদা আমাকে চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন, কত বছর হলো? আমি বললাম, দাদা 34 বছর। দাদা দুটো হাত তুলে বললেন, আরো 34 বছর আপনারা এমনি করেই থাকুন। দাদা যে হাসছিলেন সেই হাসি শেষ প্রান্তে বসে থাকা লোকেরাও শুনেছেন। কত সুন্দর দরাজ হাসি আমার জীবনে আমি হয়তো বিগত 10-12 বছরে আর দেখতে পাইনি। এবং আমরা সকলেই জানি যে আমরা একটা তার পর মুহূর্তেই শুরু হয়েছে আমাদের জীবনের এই চরম দুর্যোগ, এই মহামারী, এই করোনা, এই প্যান্ডামিক। তার ঠিক আগের মুহূর্তে আচার্যদেবের মুখ থেকে যে আশীর্বাদ আমি পেলাম যে আরো 34 বছর আপনারা এমনি করেই থাকুন, তা আমার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে রইল। তাই বলি যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি আনন্দ, প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি সমস্যা, সবকিছু যদি আমরা ঠাকুরকে একান্ত আপন ভেবে তার সঙ্গে নিবেদন করে তার সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারি, তাহলে আনন্দ যেমন আমাদের জীবনকে আরো আনন্দের পথে নিয়ে যাবে, তেমনি দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাগুলোকে অতি সহজেই অতিক্রমণ করার অমোঘ শক্তিও আমরা পাবো। আর বিশেষ কিছু বলবো না, আরো অনেকেই আছেন। সকলকে আমার জয়গুরু জানিয়ে এবং ঠাকুরের চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করে আমি শেষ করছি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু তপনদা, জয় গুরু। আপনি এত সুন্দর শ্রী ঠাকুরের কথা বলেন, এত সুন্দর মানুষের কথা বলেন, এত সুন্দর কবিতা লেখেন, আগে জানতাম না। কিন্তু এই যে ভালো, বিশ্বের সবচাইতে ভালো যিনি পরম শ্রী ঠাকুর, তাকে ধরে আমরা প্রত্যেকেই ভালো হতে চেষ্টা করি। মানুষের ভুল ত্রুটি থাকে, ভুল ত্রুটি হয়, থাকবে, কেন মানুষ মাত্রই ভুল বলে। তা আমরা চেষ্টা করব আরো সুন্দর থেকে সুন্দর হওয়ার। আর আমাদের এরপরে সদ্যেয় দীর্ঘ 25-30 বছর ধরে পরিচিত আমার পার্সোনাল পরিচিত আমাদের ডক্টর মানস মিশ্রাদা, যিনি আমাদের ধানবাদেই ছেলে, ধরুন ধানবাদ থেকেই পড়াশোনা করে আজকে ভারতের অনেক জায়গায়, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আবার সেই ধানবাদের পাশাপাশি তিনি এসছেন, মানে ঘরের ডাকেই ঘরে এসছেন আবার। তিনি আমাদের ডক্টর মানস মিশ্রাদা আমাদের এর আগেও আমরা শুনেছি, অমৃত মানে অনেক কথা শুনেছি, অনেক ভালো ভালো কথা। আজকেও এই সৎসঙ্গে আমরা ওনার কাছে সুন্দর কথা শুনবো। প্রত্যেককে ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করি আমাদের তপনদা ভালো থাকুক। আর আমাদের সদেহ মানস মিশ্রাদা এবার আপনাদের সামনে শ্রী ঠাকুরের কথা বলবে। জয় গুরু। মানুষদা আগে জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময়, পরম दयाल श्री ठाकुरेर रातुल चरणे, परम प्रेममय, परम दयाल श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ।
लक्ष्मी माँ जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम और श्रद्धा निष्ठा समर्पित करता हूँ। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा निष्ठा समर्पित करता हूँ। पूजनीय बाबाईदा, पूजनीय अविन बाबू एवं ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम और श्रद्धा निवेदन करता हूँ। श्रद्धे षष्ठीदा, श्रद्धे चक्रवर्तीदा, श्रद्धे रश्मिदा, श्रद्धे पंडादा और जितने भी श्रद्धे हमारा चंदन भाई जाजक पंजाधारी कर्मी और जितने भी श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी इस सत्संग से युक्त हैं, सभी को मेरा रानंदित प्रीतिपूर्ण श्रद्धापूर्ण जय गुरु। भक्तिमती माताओं को मेरा प्रणाम। आज श्रद्धे चैटर्जी दा का विवाह वार्षिकी है। इस अवसर पर श्रद्धे चैटर्जी दा, मीना माँ दोनों ने मिलकर ये सत्संग दिया है। श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं उनके सर्वांगीण मंगल की प्रार्थना ठाकुर जी के रातुल चरणों में करता हूँ। और साथ ही साथ श्रद्धे तपोन बनर्जी दा का भी विवाह वार्षिकी का इतना सुंदर प्रसंग मैंने सुना। श्रद्धे तपोन मेरे माध्यम से ही दीक्षा ग्रहण किए हैं, तपोन माँ भी लेकिन ये चीज पहले कभी भी श्रद्धे तपोन नहीं बोले। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस सत्संग में जुड़कर उनकी अनुभूति शेयर हुई और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि श्रद्धे तपोन सत्संग विहार के पीछे में ही रहते हैं और दीर्घ इतने सालों तक वो दोनों रहेंगे मालिक के आशीर्वाद से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। একটা যুবকের বিয়ে ঠিক হয়েছে, পাত্রীপক্ষ ঠাকুরের কাছে এসেছে। সেই যুবকের পরিবারের ইচ্ছা যে বিয়েটা অঘ্রাণ মাসে হলেই ভালো হয়। পাত্রীপক্ষ ইচ্ছা নেই যে অঘ্রাণে বিয়ে হোক, তাই ঠাকুরের কাছে তারা এটা বলতে এসছে যে তারা তো চাইছে অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হোক। অঘ্রাণে তো ঠাকুর খুব ঠান্ডা পড়ে, সেই ঠান্ডায় বিয়ে করলে যারা যাবে সঙ্গে তাদের তো খুব কষ্ট হবে। ঠাকুর তাদের কথা বুঝতে পারলেন, পাত্রীপক্ষের কথা। ঠাকুর বললেন, আমার তো মনে হয় ফাল্গুন মাসই ভালো। ঠাকুর বললেন, আমার তো মনে হয় ফাল্গুন মাসই ভালো। তারপরে খুব হাসতে হাসতে ঠাকুর বললেন, এতদিন তো ছিলেম বসে, এতদিন তো ছিলেম বসে পথ চেয়ে আর কাল গুনে। এতদিন তো ছিলেম বসে পথ চেয়ে আর কাল গুনে, দেখা পেলাম ফাল্গুনে। সুর করে ঠাকুর এই কথাটা বললেন, গানের মতন করে বললেন, এতদিন তো ছিলাম বসে পথ চেয়ে আর কাল গুনে, দেখা পেলাম ফাল্গুনে। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রীপক্ষ এই ব্যাপারটা জানালো ছেলে পক্ষকে, তাদের বিয়ে ফাল্গুন মাসেই হয়ে গেল। এইরকমই ছিলেন, চির সুন্দর, চির মনোহর। এই যে চক্রবর্তী মা, শতাব্দী চক্রবর্তী মা, তিনিও খুব ছোট বয়সে চক্রবর্তী মা আমার মাধ্যমে ঠাকুরের নাম নিয়েছিলেন। তার মা সেই সময় ছিলেন, তার বাবা, তার দুই বোন, দিদি সে। তাদের বাড়িতেও অনেক গেছি আমি। হ্যাঁ, অনেক আদর যত্ন করে তারা আমাকে খাবার টাবারও খাইয়েছে খুব ভালো করে। তার গানটা শুনে খুব ভালো লাগলো। হে চির সুন্দর, হে চির মনোহর, তোমারই শ্রীচরণে দিও ঠাঁই। তাই আমরা ঠাকুরকে গ্রহণ করেছি এই গানের মাধ্যম দিয়ে। আমাদের প্রতিটি हम लोग सभी भक्तजनों का ये निवेदन ठाकुर जी के प्रति रहता है कि आप चिर सुंदर हैं। जिसने भी श्री ठाकुर जी को अपनी आंखों से देखा, उनके रूप, रंग और रस को देखा, वो जब उनके पास जब मैं पूछता हूं कि आपने ठाकुर जी को देखा, कैसा आप फील किए। श्रद्धे समीर दासगुप्ता दादा जो अब इस धराधाम में नहीं रहे, हाल में 3-4 महीने पहले वो उनकी मृत्यु हुई है। उनसे मैं एक बार पूछा था, जब मैं बिलासपुर में रहता था, वो भिलाई में थे और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सत्संग के वो प्रेसिडेंट थे। उनसे मैं पूछता था, काकू
আপনি তো ঠাকুরকে দেখেছেন, ঠাকুরকে কেমন দেখতে ছিল, ঠাকুরকে কেমন দেখতে ছিল। তখন শ্রদ্ধেয় দাশগুপ্ত কাকু বলতেন, মানুষ ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে আর চোখ ফেরানো যেত না। তার হাসির বর্ণনা আমি করতে পারি না। আর তার কথার মধ্যে এতটাই মিষ্টতা ছিল, এতটাই আন্তরিকতা ছিল, মনে হতো প্রতিটি কথা যেন হৃদয়ের মধ্যে চলে যায়। হরিণের চোখের মতো তার চোখটা খুব সুন্দর ছিল। আর মানুষ, আমি তো অনেকবার দেখেছি, মনে হতো কিছুক্ষণ পর পর বোধহয় ঠাকুরের গায়ের রংটা বদলাচ্ছে। कुछ देर के बाद उनके शरीर का रंग बदल जाता है। उनकी आंखें हिरण की आंखों जैसी सुंदर है और उनकी मधुर मुस्कान में इतना मिष्टता थी, इतनी मिष्टता थी कि बहुत वर्षों के बाद भी वो याद होने से मन में प्रसन्नता छा जाती थी। जब मैं बिलासपुर में था, अपने जीवन का एक अनुभव मैं बताता हूँ, छोटा करके मैं बताता हूँ। देखिए, हम लोग सब लोग जानते हैं, अभी श्रद्धेय चक्रवर्ती दा भी गए हैं, ये विराट सौभाग्य की बात है। श्रद्धेय चक्रवर्ती दा, सहप्रति ऋतिक दा इतना यंग एज में वहां पर गए हैं, श्रद्धेय सुतप्पा माँ वहां पर गई हैं। उसी तरह मैं भी रांची से ट्रांसफर होकर बिलासपुर गया था और सत्संग का बहुत सारा काम आचार्य देव के आशीर्वाद से, सभी गुरु भाइयों, माताओं के सहयोग से ठाकुर जी का काम सुंदर ढंग से चल रहा था। लेकिन मेरे ऑफिस में, बगल के ऑफिस में एक बहुत पुराने दीक्षित थे और उनका भाव जैसे भी हो, जिस कारण से भी हो, मेरे प्रति उतना अच्छा नहीं था। विभिन्न रूप से वो मुझे डराते थे, धमकाते थे, क्योंकि उनका मन थोड़ा दूसरे तरह का था। उनका मन थोड़ा दूसरे तरह का था। मैं उतना खोलकर यहाँ सत्संग में तो बताना नहीं चाहता। एक बार उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग दिया कि तुम्हारा ट्रांसफर मैं आसाम में कर दूंगा, तुम्हारा ट्रांसफर मैं आसाम में कर दूंगा। तो मुझे तो कोई चिंता नहीं थी, मुझे तो कोई चिंता नहीं थी, कहीं भी मेरा ट्रांसफर कर दे, कोई बात नहीं है, ठाकुर जी जहां भी रखेंगे मैं सुंदर ढंग से ही रहूंगा। लेकिन मुझे लग रहा था ये इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कहीं मेरा आसाम में अगर ट्रांसफर कर देंगे तो ये जो आचार्य देव के आशीर्वाद से ये बिलासपुर में जो काम हो रहा है, जिसे करके मैं बहुत प्रसन्नता पा रहा हूँ, फिर कैसे होगा। तो मैंने पूजनीय बाबाईदा से निवेदन किया। आगे दादा वो सब घटना मैं बताया जो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ, उसका बहुत सारा बैकग्राउंड है। तो मैंने पूजनीय बाबाईदा से बताया, एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं जो मुझे थ्रेटनिंग देते हैं बीच-बीच में कि तुम्हारा ट्रांसफर मैं आसाम में कर दूंगा। तो पूजनीय बाबाईदा मुस्कुरा कर बोले, मानसदा আসামে অনেক ভক্ত লোকেরা থাকে, আসামে অনেক ভক্ত লোকেরা থাকে, ওখানে গেলে আপনি খুব আনন্দেই থাকবেন। आज जब चक्रवर्ती माँ वो भजन गा रही थी तो मुझे लगा कि मैं आसाम में ही बैठा हूँ और आसाम में बैठकर ही मैं सत्संग का आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। श्रद्धेय अनिल सिन्हा दा भी बहुत ही सुंदर गाए कि आप ही परम दयाल है, आप ही जीवन में सब कुछ है। सचमुच वो जब आते हैं, मनुष्य के मंगल के लिए आते हैं, नर शरीर धारण करके आते हैं, सबका मंगल करते हैं, प्रत्येक जीव जगत का मंगल वो करते हैं, साधारण रूप में चलते हैं, अति साधारण मनुष्य की तरह उठना बैठना चलता है। हर तरह का मनुष्य उनके पास में आए, कोई अर्थार्थी आया, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया, कोई जिज्ञासु बनकर आया, कोई दीनहीन व्यक्ति भी उनके पास में आया और सबों के साथ वो बहुत मनोमुग्धकारी बिहेवियर वो किए, बर्ताव किए। जीसस क्राइस्ट का जब बाइबल पढ़ता हूँ तो उसमें जीसस क्राइस्ट एक जगह बोल रहे हैं, आई विल मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन, आई विल मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन। श्री ठाकुर जी बोले, मैं मनुष्य संग्रह करने के लिए आया हूँ, मैं लोक संग्रह करने के लिए आया हूँ। मैं लोक संग्रह, परम दर्दी थे, वो परम दर्दी थे। कहते थे
एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए मैं 7 साम्राज्य त्याग कर सकता हूँ। एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए 7 साम्राज्य मैं त्याग कर सकता हूँ, लेकिन एक मनुष्य को मैं नहीं छोड़ सकता। एक मनुष्य को मैं नहीं छोड़ सकता। पूजनीय बाबाईदा 500 किलोमीटर ट्रैवल करके, बहुत सारा सत्संग विहार का उद्बोधन करके एक सत्संग विहार में बैठे थे। संध्या का समय था। बहुत हजारों लोग उनका दर्शन करने के लिए, लाइन से लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शन प्रणाम कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तजन अपने सखा मित्र बंधु को लेकर के आए हैं कि पूजनीय बाबाईदा आए हैं, उनको भी दर्शन का तो सौभाग्य मिले। एक दादा आए हैं जो ठाकुर जी के दीक्षित हैं, गुरु भाई हैं, सत्संगी हैं, और वो अपने साथ एक बिजनेसमैन को लेकर के आए हैं और पूजनीय बाबाईदा का दर्शन कराकर वो बोल रहे हैं, ये व्यवसायी हैं, ये बिजनेसमैन है। पूजनीय बाबाईदा बोले, आप बिजनेसमैन हैं? मैं भी बिजनेसमैन हूँ। आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, और मैं भी व्यवसायी हूँ। हम लोग दोनों ही व्यवसायी हैं। तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, जो जिस चीज में अटैच रहता है। एक प्रोफेसर साहब को के साथ एक जब प्रोफेसर साहब मिलते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है। एक डॉक्टर साहब के साथ जब एक डॉक्टर साहब मिलते हैं तो दोनों को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि दोनों सेम प्रोफेशन में है। तो जब वो व्यवसायी सोचे कि अरे, ये कह रहे हैं कि ये भी एक व्यवसायी है, लगता तो नहीं है देख करके। तो पूजनीय बाबाईदा बोले कि जानते हैं, एक व्यवसायी किंतु दूसरे व्यवसायी के घर में भी जाता है। एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी के घर में भी जाता है। तो वो दादा बोले कि आप मेरे घर में जाइएगा क्या? दया करके आप मेरे घर में आइएगा क्या? पूजनीय बाबाईदा बोले, मैं तो व्यवसायी हूँ, मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, मैं जा सकता हूँ। बोलिए, आप वो शर्त मानिएगा क्या? बोला, हाँ दादा, आप दया करके बोलिए। पूजनीय बाबाईदा बोले कि अगर आप 25 आदमी को मेरे पास दीजिएगा, आप मेरे पास 25 आदमी को लाइएगा, तो ये जो मैं आसन में बैठा हूं, मैं खड़ा हो जाऊंगा। दादा बोले ठीक है। वो व्यवसायी दादा बोले ठीक है। फिर पूजनीय बाबाईदा बोले, और 25 आदमी को लाएंगे तो मैं यहां से चलना शुरू करूंगा आपके घर के लिए। बोले आगे दादा। बोले आपके घर के दरवाजे के पास मैं खड़ा हो जाऊंगा, फिर और 25 आदमी को आप अगर लाएंगे तो मैं आपके घर के अंदर में प्रवेश करूंगा। बोले जी दादा। बोले उसके बाद बोले पूजनीय बाबाईदा, और 25 आदमी को अगर आप लाएंगे तो मैं आपके घर में एक गिलास पानी पीऊंगा। वो शर्त मंजूर है तो मैंने 100 लोग, पूजनीय बाबाईदा खड़े होंगे तो 25 लोग, जब चलना शुरू करेंगे तो 25 लोग, घर में प्रवेश करने से पहले 25 लोग, और जब पानी पिएंगे दया करके तब 25 लोग। 25 into 4 100। तो व्यवसायी दादा बोले जी दादा। कब जाएंगे? बोले देखता हूँ, जाऊंगा। वो व्यवसायी दादा रात में सो नहीं पाए। वो सुबह सुबह उठे और उनके जितने जान पहचान के लोग थे सबके पास जाकर बोले कि मैंने एक देव पुरुष का दर्शन किया है, मैंने एक देव पुरुष का दर्शन किया है, और मेरी इच्छा है कि आप लोग मेरे हित मित्र हैं, जान पहचान संबंधी या आत्मीय कुटुंब हैं, आप लोग भी उस देव पुरुष का दर्शन करने चलेंगे मेरे साथ क्या? तो सभी दादा लोग बोले, जो दीक्षित नहीं थे वो लोग बोले, अरे ऐसा मौका छोड़ने का है क्या? आपने देव पुरुष का दर्शन किया और हम लोग नहीं करेंगे क्या? और वो व्यवसायी दादा एक ट्रेकर भाड़ा किए और उस ट्रेकर में आदमी लाते रहे। एक ट्रेकर में आदमी आया, पहुंचाए 10-12 आदमी, 15 आदमी जो भी है। फिर दूसरे ट्रिप में 10-12 लोग आए, फिर तीसरे ट्रिप में 10-12 लोग आए। ऐसा करते करते शाम तक वो आदमी लाते रहे, और जिसको भी वो बोले कि आप लोग चलेंगे उस देव पुरुष का दर्शन करने, आए। 100 से भी ज्यादा दीक्षा हो गया। जो लोग आए सब लोगों की दीक्षा हुई। तो पूजनीय बाबाईदा बोले, चलिए अब मैं आपके घर में जाता हूँ। उसके बाद पूजनीय बाबाईदा जब उनके घर में गए तो पूरे व्यवसायी परिवार रोना शुरू किया।
सबके आंखों में अश्रु थे और वहां भी सब लोग दीक्षा ग्रहण किए। श्रद्धेय संजीव दा इस बात को बोलते बोलते, इस घटना को सुनाते सुनाते भावुक हो गए थे और श्रद्धेय संजीव दा बोले, याद करिए उस समय को जब रामचंद्र जी सबरी के पास में गए थे और सबरी को कितना आनंद हुआ था कि प्रभु उनके पास में आए हैं। ऐसा लगा जैसे सबरी के कुटिया में भगवान रामचंद्र जी आए हैं। जैसे लगा कि चातक के मुंह में वो स्वाति नक्षत्र की बूंद जैसे पड़ गई हो। वो चातक प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है कब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में पड़ेगी, वो वर्षा की वो बूंद पड़ेगी। लगता है ये व्यावसायिक परिवार भी कितने सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि मालिक उनके घर में आएंगे, और वो मालिक जब घर में आए तो उनके आंखों में आंसू थी। ये मिलन के अश्रु थे, ये आनंद के अश्रु थे। श्री ठाकुर जी के सामने एक बार सबरी की घटना कोई बोल रहा था। उसके बाद श्री ठाकुर जी बोलना शुरू किए। सबरी उस समय बहुत छोटी थी, किशोरी थी, सबरी किशोरी थी और भगवान राम को याद करती रहती थी, भगवान राम को याद करती थी। एक एक फूल भी वो तोड़ती थी तो भगवान राम के लिए ही तोड़ती थी, उसके प्रिय परम थे। और प्रत्येक दिन वो प्रतीक्षा करती थी कि कब भगवान राम उसकी कुटिया में आएंगे। और ये प्रतीक्षा करते, ठाकुर जी ये कहानी सुना रहे हैं भक्तों को, पार्षदों को, जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। ठाकुर जी ये बोल रहे हैं और वो सबरी प्रतीक्षा करते 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 वो बूढ़ी हो गई। सबरी बूढ़ी हो गई, उसकी आंखों की दृष्टि भी चली गई, वो ठीक से देख भी नहीं सकती थी। और उस अवस्था में भगवान राम आए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, सबरी बोल रही है, ओगो তুমি এসেছো, তুমি এসেছো, তুমি এসেছো। ठाकुर जी बोल रहे हैं, তুমি এসেছো। और भगवान राम आकर सामने खड़े हुए हैं और सबरी को ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ती है, उस समय उनकी आंखों की रोशनी भी नहीं है। और श्री ठाकुर जी अपने दोनों अंगुलियों से आंखों को इस तरह से बड़ा करके, अपने पलकों को इस तरह से बड़ा करके दिखा रहे हैं कि ठीक इसी तरह से सबरी ने भगवान राम का दर्शन किया, अपने दोनों अश्रु पलकों को ऊपर उठाकर। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये रामायण में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि सबरी ने किस तरह से भगवान रामचंद्र का दर्शन किया। ये जरूर लिखा हुआ है कि सबरी बहुत बूढ़ी हो गई थी, चल फिर भी नहीं सकती थी, उस समय भगवान राम वहां पर पहुंचे थे। लोगों को लगा यही तो मेरे प्रभु राम होंगे उस समय, जो जो उस घटना का वर्णन इस तरह से कर रहे हैं, जो इस घटना का वर्णन कर रहे हैं। काली षष्ठी माँ देवघर में गई प्रहलाद उपाख्यान ये सिनेमा देखने के लिए, और सिनेमा देख करके आकर दूसरे दिन सुबह में आई। ठाकुर जी पूछे, कोथाय छिले काल सन्धे बेलाय, कहाँ थी कल शाम में? काली षष्ठी माँ से पूछे। काली षष्ठी माँ बोलो, ठाकुर সংসারে তো অনেক কাজ, তাই ভালো লাগছিল না, তাই একটু সিনেমা দেখতে গেছিলাম। সেই প্রহ্লাদ উপাখ্যানটা সিনেমা দেখতে গেছিলাম, प्रहलाद उपाख्यान सिनेमा देखने में गई थी। ठाकुर जी बोले गल्प सुनाओ। तब काली षष्ठी माँ सुनाना शुरू किए, किस तरह से प्रहलाद की शिक्षा हुई है, किस तरह से वो नारायण के भक्त बने हैं, और हिरण्यकश्यपु उनके पिताजी किस तरह से प्रहलाद को ना श्री हरि से विमुख करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने आदेश दिया है, प्रहलाद को पहाड़ के शिखर में ले जाओ और वहां से प्रहलाद को फेंक दो, अगर देखें उनके नारायण उनको, श्री हरि उनको बचा सकते हैं कि नहीं। बोले मैं ठाकुर जी ये सब सिनेमा में देख रही थी, प्रहलाद को पकड़ करके उसे पहाड़ पर ले जाया गया है, उसे पहाड़ पर ले जाया गया है। इतना सुनते ही श्री ठाकुर जी बोलना शुरू किए, तारपर तारा प्रहलाद के पहाड़ेर ऊपरे निये गेल।
পাহাড় থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। और ठाकुर जी इस तरह से हाथ करके, ठाकुर जी इस तरह से अपने शुभ्र श्वेत शुभ्र बिछावन पर बैठकर इस तरह से हाथ करके रखे हैं और ऊपर के तरफ देख रहे हैं, पहाड़ के तरफ उस अद्भुत दृष्टि से ठाकुर जी देख रहे हैं और हाथ को ऐसे रखे हुए हैं। তারপর প্রহ্লাদ পড়লো আর শ্রীহরি তাকে কোলে তুলে নিলেন। श्रद्धे देवीदा लिखते हैं, ठाकुर जी को उस अवस्था में देखकर मुझे लगा, क्या यही श्रीहरि उस समय प्रहलाद को इस तरह से अपने गोद में संभाल लिए थे क्या? कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ है, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ है, व्यास देव आए हैं, कुंती माँ आई हैं, सब लोग श्री कृष्ण भगवान के पास में आए हैं ये बोलने के लिए कि इतने लोगों का प्राण क्षय हो गया, इस युद्ध में इतने लोग दिवंगत हो गए, क्या इस युद्ध का कोई कारण था क्या? जब ये लोग ये सब बोलना शुरू किए तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो उस समय कृष्ण भगवान बोले, सोनो महर्षि व्यासदेव बाजाइबो की बांसी, सुनो महर्षि व्यासदेव बाजाइबो की बांसी, सुनिए महर्षि व्यासदेव, क्या मैं अपनी बांसुरी बजाऊं? और श्री ठाकुर जी इस तरह से दिखाए, इस तरह से बोले, सुनो सुनो महर्षि व्यासदेव बाजाइबो की बांसी। देवीदा लिख रहे हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अपने इस प्रिय परम पुस्तक में ये लिख सकूं कि ठाकुर जी को उस दिन कैसा लग रहा था देखने में। ठाकुर जी को उस दिन उनका जो अंगी भंगी, उनकी जो दृष्टि, उनका जो ये जो बाजाइबो की बांसी बोलने का जो तरीका और हाव भाव, उसको व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दोपहर का समय है, देवीदा भोजन करके विश्राम कर रहे हैं। एक माँ दौड़कर आई हैं और देवीदा को बोल रही हैं, दादा ठाकुर डाकछेन, दादा ठाकुर डाकछेन, दादा ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं। देवीदा सोचे कि शायद ठाकुर जी के मन में कुछ वाणियां आई होंगी, तो वो एक डायरी और कॉलम, खाता कॉलम लेकर वो दौड़ कर गए। ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए थे उस समय, और जब पार्लर के पास पहुंचे तो श्रद्धे देवीदा ने देखा कुछ भक्त जन आए हुए हैं। देवीदा उनको हाथ जोड़कर जय गुरु किए, बोले आपनारा कोथा থেকে আসছেন, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? उसका जवाब सुनने का भी समय नहीं था। श्रद्धे देवीदा के पास में दौड़कर ठाकुर जी के पास प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले, শোন, তুই তো ওদের সঙ্গে ভালো করে কথা বললি না, तुमने तो उन लोगों से अच्छे से बात नहीं की। আগে ঠাকুর, আমি তাদেরকে জয় গুরু বলেছি আর জিজ্ঞাসা করেছি আপনারা কোথা থেকে এসেছেন। मैंने तो जय गुरु बोला, उनको तो पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं। ठाकुर बोलेन, जा ওদের সাথে ভালো করে কথা বলে आए। श्रद्धे देवीदा फिर बाहर आए। ठाकुर जी बोले, जाओ उनसे अच्छी से बात करके आओ। श्रद्धे देवीदा फिर बाहर आए, उनसे पूछे, दादा आप लोग कैसे हैं, आप लोगों का घर परिवार कैसा है, आप लोग कब आए हैं, कहाँ से आए हैं, आनंद बाजार में प्रसाद ग्रहण तो किए। वो दादा लोग बहुत खुश हुए और फिर देवीदा की बातों को सुनकर खुश होकर फिर आश्रम के दूसरे तरफ चले आए। जब ठाकुर जी के पास देवीदा लौट कर आए, ठाकुर बोल रहे, শোনো, ওরা গ্রামের গরিব লোক, ওরা গ্রামের গরিব লোক এখানে এসেছে, তুমি যদি ওদের সঙ্গে ভালো করে কথা না বলো, ওরা ভাববে যে আমরা গরিব মানুষ, গ্রামের মানুষ, তাই আমাদের সাথে কেউ ভালো করে কথা বলে না। তাই দেখবে যারাই আশ্রমে আসবে, তুমি যদি পারো তাদের সঙ্গে কথা বলো, যদি না পারো কারুককে কিন্তু রেখো, তারা যাতে ওদের সঙ্গে ভালো করে কথা বলে। हिंदी में अगर बोलूं तो श्रद्धे देवीदा को श्री ठाकुर जी बोले, देखो वो लोग गांव के लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, यहाँ पर आए थे, तुम यदि ठीक से अगर उनसे बात नहीं करोगे तो वो लोग सोचेंगे कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए कोई हमसे बात नहीं करता है। इसलिए ध्यान रखना, जो लोग भी आश्रम में आए उनसे बहुत अच्छे से बात करना, उन्हें बहुत अच्छे से बात करना। और अगर तुम किसी काम में व्यस्त रहो तो किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना
जिससे सभी लोगों के साथ बातचीत हो गई। देखिए एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, हम लोग स्किप कर जाते हैं। हम लोग के भी तो सत्संग बिहार में, ठाकुर जी के सत्संग बिहार में कितने कितने ही लोग आते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को लेकर कभी कभी रह जाते हैं, उनको जय गुरु भी नहीं बोल सकते। एक नया आदमी जब आता है तो जरूर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से ये बहुत बड़ा याजन है। वो व्यक्ति सोचेगा कि मैं तो प्रथम बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये दादा मेरे साथ कितना मीठा से बात किए, मेरा नाम पूछे, मेरे घर के बारे में पूछे, हाँ मेरे परिवार के बच्चों के बारे में पूछे। हाँ, कोई उसमें धर्म कथा या नीति कथा करने की कोई उसमें जरूरत ही नहीं है। ठाकुर जी के पास भी यदि कोई आता था कौन आइसिस, ठाकुर जी पूछते थे कौन आइसिस, कोथाई उठेसिस, खावा दावा होएसे, तो ऐसा करके पूछते थे। यही 3-4 वाक्यों में ही उस व्यक्ति का हृदय इतना आनंद से भर उठता था कि ठाकुर जी इस तरह से उनसे बातें किए। तो ऐसा ही है, हमारा व्यवहार बहुत बड़ी चीज है। पूज्यपाद श्री श्री दादा भी बोलते हैं, प्रतिदिन एक व्यक्ति को अपना मित्र बनाइएगा, प्रतिदिन एक व्यक्ति को अपना मित्र बनाइएगा। और ठाकुर जी तो सबके हैं, हम सबके ही ठाकुर जी हैं और सबों के लिए ही ठाकुर जी हैं। उनकी दया से ही ये सब कुछ सृष्ट हुआ है और हम ठाकुर जी को पकड़े हैं, इसलिए सबको ही मेरा है, सबको ही मेरे इष्ट का है, सबको ही मेरे प्रिय परम का है, इसलिए सबको ही अपना समझकर सेवा भाव से उनके साथ में बातचीत करना है परम आनंद के साथ। और मंदिर का, सत्संग विहार का भी परिवेश बहुत सुंदर होना चाहिए। जो वहां पर पूजा भोग राग में रहते हैं, उनका व्यवहार भी बहुत सुंदर होना चाहिए, जिससे ये हमेशा तो ऋतिक दादा लोग वहां पर आश्रम में रहते नहीं है, सत्संग विहार में तो रहते नहीं है, और जो पुजारी गण है वही तो सत्संग विहार में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जब भी आए तो वो पुजारी गण, पुरोहित गण यदि उनसे बहुत अच्छा से बिहेव करे, बहुत हंस करके उन्हें बैठाए, उन्हें थोड़ा पानी के लिए बोले कि आप बहुत थके हुए लगते हैं, बैठिए, इस तरह का बिहेव करने से धीरे धीरे आदमी अपना हो जाता है। ये हमारे शायद दीपक घोषदा भी सत्संग सुन रहे होंगे। मुझे याद है 1994 में जब मेरा पवित्र पंजा हुआ था तो प्रथम दीक्षा श्रद्धेय घोषदा के घर में ही हुई थी। हमें लगता है A78 फर्स्ट फ्लोर में उनका क्वार्टर था, A76 या A78, वो टीवी सेंटर कॉलोनी में मेरे को घोषदा ले गए थे। देवघर में ही बोले थे कि मानस दा আপনি রাঁচি যাওয়ার আগে আমার কোয়ার্টারে কিন্তু আসবেন, আমার কোয়ার্টারে আসবেন, তারপরে আপনি रांची फिरবেন। मैं रांची में पोस्टेड था। जो भी है, पवित्र पंजा एक दिन पहले ग्रहण किया था और मैं रात की गाड़ी से चढ़कर 12 बजे के करीब घोषदा के घर में पहुंचा, 12 साढ़े 12 बजे, और वहां पर सोया। और ठीक 4 बजे एक नॉक हुआ दरवाजा कोई खटखटाया। श्रद्धेय घोषदा दरवाजा खोले तो उनका साला महोदय पिंटू, जिसका नाम है पिंटू, पिंटू मंडल, वो प्रवेश किया। कहाँ से ना, आसनसोल या कहीं पर शायद पिंटू रहता था, या वेस्ट बंगाल में कहीं पर रहता था। तो श्रद्धेय घोषदा, मैं भी जग गया, 4 बज रहा था, मैं भी जग गया। तो श्रद्धेय घोषदा बोले, मानस दा আপনার প্রথম অবলেট এসে গেছে, আপনার প্রথম অবলেट এসে গেছে। वही पिंटू आया था। उसे घोषदा को भी मालूम नहीं था कि पिंटू आएगा उस दिन। और सुबह सुबह फिर प्रार्थना करके पिंटू की दीक्षा हुई। तो श्रद्धेय घोषदा के उस क्वार्टर से ही मैंने जो पवित्र पंजा जो पाया था, उसके माध्यम से घोषदा का साला प्रथम ऑबलेट की तरह मेरे से सतमंत्र ग्रहण किया था। फिर वो एक सिंह दादा थे, उनकी बच्ची लोग भी दीक्षा ग्रहण की थी। श्रद्धेय घोषदा के स्कूटर पर मैं 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा चला। धनबाद में कहाँ पर घोषदा मेरे को नहीं ले गए, कहाँ वो सुगिया डी, कहाँ वो मुनि डी, कहाँ वो कतरास, कहाँ वो बगुला, कहाँ वो कोला कुसुमा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, उसके बाद और भी सुदाम डी, सिंदरी, उधर निरसा, इधर गोविंदपुर, कहाँ कहाँ वो मुझे नहीं घुमाए। और मैंने देखा धनबाद में जिस तरह ठाकुर जी का नाम का प्रचार प्रसार हुआ है, धनबाद के कोने कोने में लोग जानते हैं आज के दिन में सत्संग के बारे में। ठाकुर जी के
बारे में वो लोग जानते हैं। इतना इष्टप्राण धनबाद के गुरु भाई लोग, माँ लोग हैं कि वो घोषदा मेरे को सिखाए कि एक मनुष्य से कैसा व्यवहार कर रहा है। मुझे लगता था कि घोषदा जिसको भी याचन कर देंगे वो तुरंत ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण कर लेगा। ये निष्ठा उनके मन में थी और परीक्षा भी देनी पड़ती है। ठाकुर जी को लेकर चलने में नियत परीक्षा भी देनी पड़ती है। इसलिए मालिक के श्री चरणों में, जैसे शताब्दी माँ बोली, मालिक के श्री चरणों में अपना समस्त ध्यान कर्म सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। और चक्रवर्ती माँ जिस तरह से गाई, इस राधा नाम में इतना आनंद है कि हृदय खोलकर, जैसे चक्रवर्ती दादा भी बीच बीच में गा रहे थे, वैसा ही एक एक जब मैं अकेला रहता हूँ तो अपने आप से हमें मिलने का एक सुयोग मिलता है। अपने आप को मैं समझ सकता हूँ, मैं अपने आप की परीक्षा कर सकता हूँ कि ठाकुर जी के पथ में किस तरह से मैं चल रहा हूँ, किस तरह से। इसलिए एक आत्म साक्षात्कार प्रतिदिन होना चाहिए और नाम ध्यान के बीच में हम आत्म साक्षात्कार करते हैं और अपने को सुधारते हैं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी की मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु।